Good morning, dear students. How are you all? Sanila ma'am is back. So today we are going to start the exercise of the lesson that we have read in previous class. है ना? Which lesson we have completed? We have completed reading of lesson 4, working of a computer. Okay. In this lesson we have studied how a computer works and what all parts they are having, and also the IPO cycle, that is input processing output. Okay. आई होप आप सबने 3 टाइम्स रीड किया होगा और लेसन को समझा होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ओके, सो एक्सरसाइज के पहले एक और क्वेश्चन. हैव यू ऑल कंप्लीटेड द वर्ड ग्रिड गिवन इन पेज नंबर 24? हाँ, this word grid I have given you all to do this in your textbook as a homework. Have you all completed this? I want everyone to do this. Okay, this is your homework. Everyone has to complete this. Okay, now I will move on to the exercise, page number 25. Okay, lesson 4 exercise we are going to do today. Okay, question number A. What is first question? Pick the correct option. Okay, what is your first question? टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना. आपको क्या करना है, आपकी बुक में टिक द करेक्ट ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 3 ऑप्शंस, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वन बाय वन विल रीड एंड राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट और टूल that does a particular job is called a blank. Okay, so first question में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. That also I write, then we'll see what is the correct option, है ना. So first one is option A, system. Option B, device. Option C, scanner. Okay, there are 3 options given for the first question. What is the question? I will read it and then explain it, then we will find out which one is the correct option. A part or tool that does a particular job is called blanks, है ना. हमने डिवाइस पढ़ा था लेसन में. जिन बच्चों ने रीड किया होगा लेसन प्रॉपरली 3 टाइम्स, उनको इजीली समझ में आ जाएगा और उन्होंने अब तक आंसर फाइंड आउट भी कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको नहीं आएगा. ओके, सो द फर्स्ट वन इज एक ऐसा पार्ट या टूल जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हैं, एक टास्क परफॉर्म करते हैं. उस चीज को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, या डिवाइस कहते हैं, या स्कैनर कहते हैं. Yes, a part or tool that is used to do or perform a particular task or job is called device, है ना. डिवाइस को यूज करके हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं. ओके, सो नाउ सेकेंड वन, आफ्टर taking the input, a computer works on them. This is
called blanks. Option A, processing. Option B, output. Option C, storage. Okay, so the second question is, after taking the input, a computer works on them. This is called, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फॉलो करना है? IPO cycle, right? So I will write it here. Watch here. IPO. And what is the full form? Input, processing, output. I for input, P for processing, O for output. ओके सो इसमें क्या बोला है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, है ना? तो क्या बोला है? आफ्टर टेकिंग द इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर नेक्स्ट क्या कर रहा होता है? प्रोसेसिंग, देन लास्ट क्या होता है? आउटपुट. तो इसमें क्या पूछा है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन देम. वर्क्स ऑन देम मीन्स एडिशन दिया है तो एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन दिया तो सब्ट्रैक्शन कर रहा है, किसी चीज का रिपोर्ट प्रिपेयर करने बोला है तो वो कर रहा है, रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा है. तो बेसिकली क्या कर रहा होता है वो? प्रोसेसिंग, है ना? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? प्रोसेसिंग. ओके, नाउ थर्ड वन. We'll move on to the third question. I hope you all are doing it along with your ma'am. Always keep a pencil and always try to do along with your ma'am so that your writing speed will also improve. ओके, एवरी टाइम मैम आपको रिमाइंड नहीं कराएगी कि बेटा पेंसिल लेकर बैठो, कीप योर फिंगर और लिसन केयरफुली और राइट डाउन अलोंग विद मैम, है ना? यू शुड बी लिटिल मोर केयरफुल एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, है ना? हम पढ़ने बैठे हैं, अभी वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कैरी विथ यू, है ना? नाउ द थर्ड वन. What type of device is CPU? What is the question? CPU किस टाइप का डिवाइस है पूछा है ना? So options are processing device, option B, output device, option C, इनपुट डिवाइस. तो किस टाइप का डिवाइस होता है? सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है. सो सिंपली क्या होगा? प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना? सीपीयू हमारे सारे वर्क्स करता है. जैसे ही हमें इनपुट देना होता है कंप्यूटर को, हम इनपुट देते हैं तो सारे इनपुट सीपीयू में जाके क्या हो रहे होते हैं? प्रोसेस हो रहे होते हैं. उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है. आउटपुट किससे मिलता है? आउटपुट डिवाइस. ओके, नाउ द फोर्थ वन. What type of device is the हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क किस टाइप का डिवाइस होता है? ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी, इनपुट, ऑप्शन सी, स्टोरेज, है ना? सो हम लोग ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लेसन में स्टोरेज डिवाइस, है ना? तो स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या एग्जांपल मिले थे हमें? हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड पेन ड्राइव. देखो ये आपका लास्ट टॉपिक था स्टोरेज डिवाइस, इसमें हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड पेन ड्राइव मेंशन्ड है ना? तो आपको इससे सिंपली क्या पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज द हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस. ओके, टिक ऑन स्टोरेज. इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, so now we will move on to the
fill in the blanks. Okay. Okay, now see, ma'am has written the questions here. Fill in the blanks, है ना? Now we'll read it and find out what is the correct one, है ना? Fill in the blanks with the correct words. Second question, that is question number B. On same page number is fill in the blanks, है ना? अब first read करते हैं. The result on monitor is called the. आपको पता है कभी भी कोई भी रिजल्ट हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Whenever we find out a result on computer, what is it? It is the output, right? So first में क्या आएगा? Output, right? What is it? Output. Now the second one. In an IPO cycle, P stands for. अभी हमने पढ़ा था IPO. I for input, P for processing, O for output. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? Processing, right? What is it? P stands for processing. Okay? Now third one. Dash devices help us to give input or data to the computer. ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमें इनपुट देने में या डेटा प्रोवाइड करने में कंप्यूटर को हेल्प करता है? It is an input device. What is it? Input. Okay. Now fourth one. Joystick is or an a dash device, है ना? अब A आएगा कि N आएगा, ये तो ऑप्शन डिसाइड करेगा. जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है, आउटपुट है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? व्हाट इज इट? जॉयस्टिक इज अ आउटपुट डिवाइस, है ना? सॉरी, इनपुट डिवाइस, है ना? देखो आप लोग यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस जहाँ है आपका क्वेश्चन, ये आपका इनपुट डिवाइस ऑप्शन था पेज नंबर 23 पे. सब लोग पेज टर्न करके देखो, उसमें देखो जॉयस्टिक दिया हुआ इनपुट डिवाइस में. सो व्हाट इज इट? इट इज एन इनपुट डिवाइस. सो विल राइट जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. ओके. नाउ अ डैश डिवाइस इज a device that stores data for later use. अब एक ऐसा डिवाइस बताओ जो डेटा को फर्दर यूज के लिए सेव करके रखता है. व्हाट इज इट? सेव कर रहा है मीन्स स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज मीन्स टू सेव समथिंग, है ना? जहाँ हम कुछ भी सेव करके रख सकते हैं. सो अ स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा फॉर लेटर यूज. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. Now let us see what is given on next page. Turn your book, turn your page everyone. Take out page number 26. Now see everyone, on page number 26 this question number C is given. Put these words or phrases in the correct columns. आपको ऊपर देखो कुछ words दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो, है ना? इन वर्ड्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. ओके. सो विल सी व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इट डूज व्हेन इट गोज टू द प्रोसेसिंग फील्ड एंड देन व्हाट इट गिव्स एज एन आउटपुट, है ना? सो विल स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट वर्ड इज पेंसिल, है ना? व्हाट इज इट? पेंसिल. विल टेक पेंसिल एज एन इनपुट, है ना? पेंसिल को क्या किया हमने? इनपुट की तरह लिया. उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? आपको कितने ऑप्शंस दिए हुए? टोस्टर, पेंसिल, वॉशिंग मशीन, क्लीन क्लोथ्स, ब्रेड, टोस्ट, डर्टी क्लोथ्स एंड शार्पेंड पेंसिल, है ना? सो आपको देखो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दैट इज शार्पनर, है ना? सो व्हाट विल डू, विल ऐड एन ऑप्शन टू द गिवन वर्ड्स, है ना? तो आप लोग क्या करना, ये जो आपको वर्ड्स दिया हुआ है बेटा, इसके साथ यहाँ आगे एक वर्ड और ज्वाइन कर लो, शार्पनर, है ना? शार्पनर मीन्स आपका कटर जिसमें आप पेंसिल शार्प करते हो, राइट? सो विल राइट शार्पनर हियर एज प्रोसेसिंग, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे पेंसिल शार्प हो रहा है. देन आउटपुट हमें क्या मिला? शार्पन pencil, right? What will we find in the last?
we find sharpen pencil. Okay, so इसी तरह से आपको नेक्स्ट 3 भी करना है. क्या करना है? इनपुट लिखना है, प्रोसेसिंग का जो भी प्रोसेस चल रहा है वो लिखना है, देन आउटपुट आपको क्या मिल रहा है वो लिखना है. So see the second one, we'll take bread. What is it? Bread. You all have bread with jam, butter or some other thing, है ना? You make sandwiches with bread, right? Okay. Now bread को क्या किया? टोस्टर में डाल दिया. किसमें डाला? टोस्टर में, an electronic device, and the processing was going on. The toaster was converting bread into a toast, है ना? तो हमको as a result output क्या मिला? Toast. क्या मिला? Toast, right? Now third one, dirty clothes. क्या हुआ? गंदे कपड़े हमारे इनपुट, उनको हमने प्रोसेसिंग के लिए किस में डाला? वॉशिंग मशीन. Where we have put washing machine, right? वॉशिंग मशीन क्या है हमारा? प्रोसेसर, जहाँ पे प्रोसेसिंग क्या हो रहा है? डर्टी क्लोथ्स वॉश हो रहे थे, है ना? And as a result we have found clean clothes, है ना? We have found clean clothes as output. So ये आपका एक एग्जाम्पल है बेटा इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को लेकर के. इनपुट आउटपुट साइकिल कैसे होता है? कभी भी किसी चीज़ को एज ए इनपुट देते हैं, प्रोसेस में वो प्रोसेस हो रहा होता है उसका जो भी. अब हमारा मेन टास्क पेंसिल को और शार्पनर को लेके क्या होगा? हमें पेंसिल शार्पन चाहिए विद अ शार्प निब, राइट? सो व्हाट वी डू, वी पुट पेंसिल एज एन इनपुट टू द इनसाइड द शार्पनर, देन विल शार्पन इट. व्हाट इज इट? What we call that? We call it processing, right? We processed our pencil with the sharpener and then as an output we have found sharpened pencil, right? This is the IPO cycle. The second time also bread, simple plain bread, we have given it to the processor, that is our toaster, and the toaster converted bread into toast as an output, right? Then the third one, dirty clothes, गंदे कपड़े, उसको हमने प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर में डाला. हमारा प्रोसेसर क्या है? Washing machine. Then washing machine converted our dirty clothes into clean clothes. So as an output we have got clean clothes, right? So this is the IPO cycle. आप इस IPO cycle को घर में किसी भी चीज़ से relate कर सकते हो. Okay? Is that clear everyone? Good. So now we have studied what is IPO cycle. Now you have to complete the exercise as far as I have taught you, है ना? Till page number 26 up to question number C you have to complete in your textbook, and then in next class we will learn question answers and then what all activities are given. Okay? Till that, good day everyone.